राधे राधे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो कल हमने बहुत कुछ जाना था, लोक के बारे में जाना था कि पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिन पे 5-4 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर मिलती हैं। दैट इज़ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज, राइट। चाहे प्लैनेट जो ब्रह्मलोक है वहाँ तक क्यों ना पहुँच जाए। तो आज हम आगे शुरुआत करते हैं और ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। ओके, सो द इन द 15th हमने कल एंडिंग की थी, बिगिन अ ट्रूली blissful life in the spiritual sky. No, just a second. ओके, हमने कल जो एंड किया था वो किया था कि इस मटेरियल यूनिवर्स में कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो इन 4 प्रिंसिपल्स से, जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है उससे वंचित हो, उससे दूर हो। तो आगे बढ़ते हैं। द लिविंग एंटिटीज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर, बट at any planet we like merely by a mechanical arrangement. If we desire to go to other planets, there is a process for going there. This is also mentioned yanti devvrat devan pitran yanti pitravratah. No mechanical arrangement is necessary if we want interplanetary travel. मतलब अगर हमें किसी भी प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाना है तो उसके लिए कोई भी मैकेनिकल अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना चाहिए? द गीता इंस्ट्रक्ट्स यंती देव व्रत देवन, द मून, द सन एंड हायर प्लैनेट्स आर कॉल्ड स्वर्गलोक. There are 3 different status of planets: higher, middle and lower planetary systems. The earth belongs to the middle planetary system. Bhagavad Gita informs us how to travel to the higher planetary systems, Devlok, with a very simple formula. Yanti Dev Vrat Devan. One need only worship the particular demigod of that particular planet, and in that way we go to the moon, the sun or any of the higher planetary systems. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हमें किसी भी मैकेनिकल लाइक रॉकेट और किसी भी स्पेसशिप की ज़रूरत नहीं है किसी और प्लैनेट पे जाने के लिए। एक बहुत सा सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम किसी भी प्लैनेट पे जा सकते हैं। यंती देव व्रत देवन, मतलब हम किसी भी एक भगवान की पूजा जब करते हैं तो हम उन्हीं के प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं, मतलब हम उनसे कनेक्टेड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ रहने लगते हैं, उनके साथ हम बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो हमारे साथ, हम उनके साथ रहने लगते हैं। तो वो एक स्पिरिचुअल लेवल का जो है, हम उनके प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। येट भगवद गीता डज नॉट एडवाइज अस टू गो to ends in this material world, because even if we go to Brahmalok, the highest planet, through some sort of mechanical contrivance by maybe traveling for 40,000 years, and who would live that long, we will still find the material inconveniences of birth, death, disease and age. But one who wants to approach the supreme planet, Krishna Lok, or any other planet within the spiritual sky will not meet with these material inconveniences. Amongst all the planets in the spiritual sky, there is one supreme planet called Golok Vrindavan, the original planet in the abode of the original personality of Godhead Sri Krishna.
All of this information is given in Bhagavad Gita, and we are given through its instruction information how to leave the material world and begin a truly blissful life in the spiritual sky. In the 15th chapter of the Bhagavad Gita, the real picture of the material world is given. It is said there, Urdhav Moolam Adaha Sakham Aswatham Prahur Avyayam Chandamsi Yasse Parnani Yastam Veda Savedavit. Here, the material world is described as a tree whose roots are upwards and branches are below. We have experience of a tree whose roots are upward. If one stands on the bank of a river or any reservoir of water, he can see that the trees reflected in the water are upside down. The branches go downward, and similarly, this material world is a reflection of the spiritual world. The material world is but a shadow of reality. In the shadow, there is no reality or substantiality. But from the shadow, we can understand that there are substance and reality. In the desert, there is no water, but the Maharaj suggests that there is such thing as water. In the material world, there is no water, there is no happiness, but the real water of actual happiness is there in the spiritual world. यहाँ पे हमें क्या समझाया गया है कि जो ये मटीरियल वर्ल्ड है, भगवद गीता के 15 चैप्टर में साफ साफ बताया गया है कि जो ये हमारी दुनिया है, जैसे हम दुनिया कहते हैं, ये जो मटीरियल वर्ल्ड है, राइट, इसके जो रूट्स हैं ये एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और जो उसकी ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं, वो नीचे हैं। और ऐसा कहाँ पे होता है? हमारे दिमाग में सीधे आता है कि अगर हम परछाई देखते हैं किसी नदी में तो वो उल्टा दिखता है, राइट। तो अब यहाँ से आप समझिए कि वो जो पेड़ है और वो जो उसकी परछाई है, तो वो जो पेड़ है वो है गोलोक वृंदावन, जो स्पिरिचुअल स्काई, जो है सुप्रीम प्लैनेट जिसको गया है, जहाँ पे कोई भी नहीं पहुँच सकता, मतलब इस इंसानी शरीर में तो कोई नहीं पहुँच सकता। दैट इज़ द सुप्रीम प्लैनेट। ओके, जो सुप्रीम प्लैनेट है वो है एक सीधा पेड़ जिसकी टहनियाँ ऊपर हैं और जड़ें नीचे हैं। तो उसकी जो परछाई है वो सुप्रीम है और उसकी जो परछाई है वो क्या है? वो हमारी ये दुनिया है। इसलिए कहते हैं कि ये सब मोह माया है। तो इसका अंत भी है, इसका आरंभ भी है, पर वो जो स्पिरिचुअल स्काई है, कोई भी आरंभ नहीं है, उस प्लैनेट का कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है, कोई भी वहाँ पे बर्थ, डेथ, डिसीज़, ओल्ड एज ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी मटेरियलिस्टिक नहीं है। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल एंड एटर्नल, सब कुछ सनातन है, मतलब जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियरली हो गई है कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ उस स्पिरिचुअल जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड है उसकी सिर्फ एक परछाई है। तो जो असली खुशी है, जो असली खुशी, एक्चुअल हैप्पीनेस है, जो वो है वो रियल वर्ल्ड में है, मतलब परमात्मा से खुद को जोड़ने में है। The Lord suggests that we attain the spiritual world in the following manner. अब आगे भगवान जी बताते हैं कि हम कैसे इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उसको अटेन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि इंसानी शरीर में तो हम नहीं जा सकते, तो अब भगवान बताते हैं कि हम कैसे उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है गोलोक वृंदावन, वहाँ कैसे हम पहुँच सकते हैं। निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत कामः द्वंद्व वैर विमुक्तः सुख दुख समज्ञ समनेर गच्छन्ति अमुद्धः पदम अव्ययम तत्। That padam avyayam or eternal kingdom can be reached by one who is nirman. What does this mean? We are after designations. Someone wants to become sir, someone wants to become lord, someone wants to become the president or a rich man or king or something else. Obviously हमें कुछ ना कुछ बनना है,
हमें बनना है, ये बीइंग अ ह्यूमन, ये हम सबका सच्चाई है, और ये भगवान जी ने खुद कहा है और इसको हम बदल भी नहीं सकते. तो as long as we are attached to this designations, we are attached to the body, because designations belong to the body. But we are not these bodies, and realizing this is the first stage of spiritual realization. We are associated with the three modes of material nature, but we must become detached through devotional service to the Lord. If we are not attached to devotional service on the Lord, then we cannot become detached from the modes of material nature. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमें क्या करना है. अगर हम सबसे पहले इस बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, अगर हम ये डेजिग्नेशन से डिटैच हो जाते हैं और परमात्मा से अटैच हो जाते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं कि हम एक आत्मा है और हमें परमात्मा से जुड़ना है, तो ये पहला स्टेप है स्पिरिचुअलिटी की तरफ. यस, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप जहाँ से हम ये रियलाइज़ करते हैं. इट इज़ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कि हम उस जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है, वहाँ हम पहला कदम उसकी ओर बढ़ा चुके हैं. Designations and attachments are due to our lust and desire, our wanting to lord it over the material nature. As long as we do not give up this propensity of lording it over material nature, there is no possibility of returning to the kingdom of the Supreme, the Sanatan Dharma. जब तक हम इस मोह माया से जुड़े हुए हैं. अच्छा, एक होता है नॉर्मली कहते हैं सब मोह माया है, सब मोह माया है ना, मजाक में. बट यहाँ पे वो असली वाली मोह माया की बात है, मतलब इस दुनिया की बात है. जब तक हम इस दुनिया से जुड़े हुए हैं, इस शरीर से जुड़े हुए हैं, तब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ पाते हैं. जुड़ने का क्या मतलब है? अटैचमेंट, मोह जिसको हम कहते हैं. पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का एक मोह होता है अपने बच्चों के साथ, है ना. तो वो एक अटैचमेंट होता है. हमारा किसी के साथ अटैचमेंट हो जाता है, किसी दूसरे ह्यूमन के साथ, तो हम अपना उसके साथ डिटैच नहीं कर पाते. सुना है ना कि मैं प्यार करता था उसको, ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ. तो हम जब किसी और ह्यूमन से हम डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी ही ह्यूमन बॉडी से हम कैसे डिटैच कर पा रहे हैं. लेकिन जिसने भी ये कर लिया है या जो भी ये कर सकता है, वो परमात्मा की तरफ अपना एक रियल कदम, स्पिरिचुअल कदम बढ़ा देता है. पर जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, कलयुग में वैसे भी हमारा सिर्फ एक नाम लेना ही हमें परमात्मा से जोड़ देता है. तो कलयुग में तो फिर भी ये सब बहुत आसान है. बट ये बात हो रही है कि जब हमें एक्चुअली उस वर्ल्ड में जाना है, एक्चुअली श्री कृष्ण के चरणों में जाना है, वहाँ की ये बात हो रही है. तो दैट एटर्नल किंगडम, वो जो सनातन धाम है जिसको हम कहते हैं, which is never destroyed, can be approached by one who is not bewildered by the attractions of false material enjoyments, who is situated in the service of the Supreme Lord. One so situated can easily approach that Supreme abode. Elsewhere in the Gita, chapter 8, Shlok 21, it is stated, Avyakto sar iti uktas tamah parmam gatim yam prapena nivartante tad dham paramam mam. Avyakt means unmanifested. Now the material world is manifested before us. Our senses are so imperfect that we cannot even see all of the stars within this material universe. In the Vedic literature, we can receive much information about all the planets, and we can believe it or not believe it. All of the important planets are described in the Vedic literatures, especially Bhagavatam. And the spiritual world, which is beyond this material sky, is described as Avyakt, that is, unmanifested. One should desire and hanker after that supreme kingdom, for when one attains that kingdom, he does not have to return to this material world.
ये बार बार यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एक बार उस किंगडम में पहुँच जाता है, जो एक बार उस सनातन धाम में पहुँच जाता है, गोलोक में पहुँच जाता है, वो कभी भी दोबारा इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आता। लेकिन जो पुनर्जन्म की गाथा है वो भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज़ भी पहले क्लियर की गई है और फिर से क्लियर हो रही है कि हाईएस्ट प्लैनेट जो ब्रह्मलोक है, वहाँ तक भी अगर कोई भी आत्मा जा रही है तो वो वापस आएगी, क्योंकि ये जो सारे प्लैनेट्स हैं वो मटेरियल है। लेकिन जो आत्मा एक बार गोलोक पहुँच गई वो फिर वहाँ से वापस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आएगी, वो वहीं रहेगी। Next, one may raise the question of how one goes about approaching that abode of the Supreme Lord. अब ऑब्वियस ही बात है कि नहीं लेना हमें पुनर्जन्म, और कैसे हम सीधे पहुँचे श्री कृष्ण के धाम। Information of this is given in the 8th chapter. It is said there, अंत काले च ममेव स्मरण मुक्तव कलेवरम यह प्रयति स मद्भवम यति नास्ते अत्र समस्या। And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature. Of this there is no doubt. अब यहाँ पे देखो कितनी हमने अभी तक कितना हमें टिपिकल लग रहा है कि ब्रह्मलोक तक जाते हैं तो कहाँ ही हम गोलोक पहुँचेंगे, अगर नॉर्मली हम सोचें एज अ ह्यूमन। बट अगर हम स्पिरिचुअली सोचें तो कितना सीधा सा सॉल्यूशन यहाँ पे श्री कृष्ण ने हमें बताया हुआ है कि सिर्फ अपने अंत समय में शरीर छोड़ते मुंह से सिर्फ श्री कृष्ण का नाम निकलता है, या हम उनको याद करते हैं, सिर्फ उनका नाम लेते हैं। श्री कृष्ण मतलब राधे कृष्ण। अगर हम ऐसा करते हैं अपने अंत समय में, हमारे जो अंत शब्द हैं, जो आखिरी शब्द हैं, अगर वो राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कुछ भी होते हैं इसमें से, तो वो जो आत्मा है वो सीधे गोलोक में जाती है। पर आजकल हम भी जानते हैं कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई भगवान का नाम लेते लेते मरे। हम अक्सर क्या कर रहे होते हैं, इस बॉडी, इस वर्ल्ड के छूटने का दुख होता है, मन में चिंता होती है, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन और वही चीज़ है जो हमें अपनी बॉडी और अब इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच नहीं होने देती। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे और भगवद गीता को जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी जो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस हैं, और बहुत लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं, माइंड में होते हैं, थॉट्स कि जब भी किसी की मृत्यु होती है या उसके बाद भी, आजकल कलयुग में ये चीज़ बहुत है जो तंत्र एंड ऑल होता है कि उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है या उनकी आत्मा यहाँ है। तो वो क्या है कि गोलोक तो बहुत दूर की बात है, तो उन आत्माओं के साथ क्या हुआ है कि उन आत्माओं का जो डिटैचमेंट है वो हुआ ही नहीं है। उनका जो इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ अटैचमेंट है, जो अपनी बॉडी के साथ अटैचमेंट है, अपनी चीज़ों के साथ अटैचमेंट है, वो ख़त्म ही नहीं हुआ है। और इसलिए वो किसी और प्लैनेट पे जाना तो छोड़ो, वो इस प्लैनेट को छोड़ के ही नहीं जा पाए। और पहले ऐसा आजकल हम सुनते हैं ना कि अभी ये चीज़ें बहुत होने लगी हैं कि इनकी आत्मा आ गई, उनकी आत्मा आ गई। कुछ अच्छी आत्माएं भी होती हैं, ऐसा नहीं है वो बुरी आत्माएं हैं, वो अच्छा ही चाहती हैं। बट क्या होता है, अगर कोई अच्छी आत्मा भी है और हमें इस बॉडी से अटैचमेंट है ना, हमें मोह माया है, अपने परिवार से हमें मोह है, तो कितनी भी अच्छी आत्मा हो, ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कितना भी अच्छा काम किया हो, लेकिन क्या होता है कि जब वो आत्मा का रूप ले लेते हैं, अब उनको पता है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या होता है, अपनी जगह वो गलत नहीं है शायद, राइट, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ है, बट क्या होता है वो करते करते वो उस वर्ल्ड के लिए गलत हो जाते हैं, वो औरों के साथ गलत शुरू हो जाते हैं। और वो जो ये तंत्र एंड ऑल होता है, जो तांत्रिक होते हैं, वो इसी चीज़ पे फोकस करके उसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं।
तो हमें करना क्या है, इसलिए कहते हैं कि हम भगवान का नाम लेते रहें, क्योंकि जो किसी भी चीज़ से हमें जो बचा सकते हैं, ये गुरु परमानंद महाराज जी की भी मैंने वीडियो में सुना है कि कोई नज़र, कोई तंत्र, कोई कुछ भी किसी के कुछ दे देने से, किसी के कुछ पढ़ के दे देने से, किसी के कुछ खिला देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका जो भरोसा परमात्मा में है वो पूरा है, पूरा मतलब इतना सा भी कम नहीं, इतना सा भी उसमें शक नहीं होना चाहिए, पूरा है। शायद मेरी वीडियोस देख के भी आप लोग को ऐसा लगता हो, बट मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ के और जो मेरी नॉलेज के हिसाब से मेरे मन में आती हैं, मैं बस वो चीज़ें बोल रही होती हूँ। इसलिए मैंने अपनी वीडियोस को व्लॉग का नाम दिया, ना ये कोई फैक्ट है ना कोई ट्रुथ है। मैं इसमें सिर्फ अपने जो मैं डेली का पढ़ रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपके भी जो व्यूज़ हैं हर चीज़ पे, वो भी आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, है ना। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगी और फिर आगे जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन माइंड में आएगा और उस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा, तो वो हमें याद आएगा कि ये क्वेश्चन था और ये क्लियर हो गया, तो वो कहीं ना कहीं हमें व्यूज़ पता लगते हैं। सो आई वेलकम योर क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, जो भी आपको कहना है। मेरी वीडियोस पे मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि आपने, मैं कुछ भी, आपके सारे कमेंट्स मैंने अलाउ किए हुए हैं, आप कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि जब मैं परमात्मा के शरण में हूँ और मैं परमात्मा शरण में ही भगवत गीता, श्रीमद् भगवत पाठ कर रही हूँ, और मैं जब आप लोगों से कह रही हूँ कि अटैच होना चाहिए, तो सबसे पहला डिटैचमेंट मेरा बनता है। गुरु जो भी शिष्य को सिखाता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गुरु वो खुद ना कर रहा हो। तो मैं खुद को गुरु नहीं कह रही हूँ, मेरी बात को गलत नहीं समझिएगा प्लीज़। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कह रही हूँ कि अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ भगवत गीता से पढ़ के और मैं खुद पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो मेरा भगवत गीता पढ़ना सफल नहीं है। तो इसलिए आपके किसी भी तरह के कमेंट्स मैं वेलकम करती हूँ, और जिनको भी गीता के थ्रू और जितने भी शास्त्र हैं या जैसे भी हमको क्लियर कर पाएंगे हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये सफ़र ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो आज वैसे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जो मुझे भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक हैवी नॉलेज जो है वो आ रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, बस हम इसको थोड़ी देर में यहीं पे विराम देंगे। तो हमने जाना कि अव्यक्ता क्या होता है, अनमैनिफेस्टेड, है ना, और ये जो मटीरियल स्काई है और वो जो स्पिरिचुअल स्काई है वो अनमैनिफेस्टेड है। तो one should desire and hanker after the supreme kingdom, for when one attains that kingdom he does not have to return to this material world, उसको यहाँ वापस नहीं आना पड़ता। और फिर हमने जाना कि कैसे हो सकता है कि सिर्फ अपने अंत समय में अगर हम श्री कृष्ण, श्री राधे कृष्ण का नाम लेते हैं। One who thinks of Krishna at the time of his death goes to Krishna. One must remember the form of Krishna. If he quits his body thinking of this form, he surely approaches the spiritual kingdom. Madhbhavam refers to the supreme nature of the Supreme Being. The Supreme Being is Satchidanand Vigraha, that is, his form is eternal, full of knowledge and bliss. Our present body is not Satchidanand, it is Asat, not Sat. It is not eternal, it is perishable. It is not set full of knowledge, but it is full of ignorance. We have no knowledge of the spiritual kingdom, nor do we have any perfect knowledge of this material world, where there are so many things unknown to us. अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि ये जो दुनिया है ये एक तो एटर्नल नहीं है, इसका अंत भी है, आरंभ भी है। ये सत्य नहीं है, सत नहीं है, असत है। ये फुल ऑफ नॉलेज नहीं है, ये फुल ऑफ इग्नोरेंस है, क्योंकि हमें इवन इस सिर्फ एक प्लैनेट की भी पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। एक ह्यूमन माइंड को सिर्फ एक इस प्लैनेट की भी पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। या इसको अगर बहुत आम भाषा में समझना है तो हम कह सकते हैं कि हमें आज के टाइम पे अगर हम देखें, पहले तो होता था कि लोगों को अपने पूरे गांव वालों का पता होता था कि कौन कहाँ रहता है, कौन किसका घर है, क्या है। अभी अगर हम देखें तो इवन एक जो लेन है, एक जो मोहल्ला है, जो कॉलोनी है,
इवन वहाँ के लोगों को भी एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी नहीं। तो शहर, गांव, देश, विदेश और पूरी दुनिया, वो तो फिर हम क्या ही करें। तो द बॉडी इज ऑल्सो निरानंद, इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्लिस इट इज फुल ऑफ माइजरी। और जो बॉडी है वो भी खुशियों से भरी नहीं है, वो दुखों से भरी है। क्यों दुखों से भरी है? क्योंकि हम अटैच्ड हैं। जैसे जैसे हम डिटैच होने लगेंगे तो हमें खुशी फील होने लगेगी, और फिर हमें ऐसा लगेगा कि हमारी बॉडी खुश है, लेकिन वो एक्चुअली बॉडी खुश नहीं है, वो सोल खुश है। बॉडी में पेन होता है ना, दर्द होता है, माइजरी होती है, बॉडी में होती है, सोल पे तो नहीं होती है ना। बट कुछ वो ओवर इमोशनल लोग, ओवर इमोशन में हम क्या बोल देते हैं, मेरे दिल पे चोट लगी है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, वो भी बॉडी है। यहाँ पे वो चीज़ बहुत क्लियर हुई है कि वो भी बॉडी है, राइट। हमारा दिल भी बॉडी है, दिमाग भी बॉडी है। जो अंदर आत्मा है, जो प्राण है, जो सोल है, वो इटर्नल है। तो वो फुल ऑफ ब्लिस है। इसलिए कहते हैं कि अपनी आत्मा को खुश रखना चाहिए। जब आत्मा खुश होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। All of the miseries we experience in the material world arise from the body, but one who leaves this body thinking of Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, at once attains a Sachidanand body. तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि जो सच्चिदानंद बॉडी अगर किसी को चाहिए, मतलब जो जिसमें सच्ची खुशी है, सच्चा आनंद है, उसके लिए एक ही रूल है कि मरते वक्त हमारे आखिरी समय में हमारे मुंह से श्री कृष्ण का नाम हो, हमारे दिल में श्री कृष्ण का नाम हो, हमारी आँखों के सामने श्री कृष्ण की छवि हो, और सिर्फ श्री कृष्ण श्री राधे कृष्ण हो। तो आज हम इसको यहीं विराम देंगे, बहुत ज़्यादा ना आगे बढ़ते हुए। पहले हम इतना ज़ूम करते हैं, अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि क्यों है ये महापुराण, क्यों ये भगवद गीता ज़िंदगी का सार है। ये ज़िंदगी का ही नहीं है, बियॉन्ड दिस लाइफ का भी सार है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो कल मिलते हैं, आगे का पढ़ेंगे। और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप सुनिए। आपने जो भी कहना है, आपके मन में जो कुछ भी आपको कहना है, कोई आपको नहीं जान रहा है यहाँ पे, आप कुछ भी आपको कहना है अनलोइंगली आप यहाँ पे लिख सकते हो। बस उससे एक चीज़ होगी कि जब मैं उन चीज़ों को पढ़ूंगी, आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी, आपके व्यूज़ को पढ़ूंगी, तो कहीं ना कहीं जब हम भगवद गीता पढ़ रहे होंगे तो आगे जाके जो वो क्वेश्चंस हैं वो माइंड में आएंगे और आपको आपकी बातों का जवाब मिलेगा। तो वो मेरे बोलने में भी वो चीज़ आ जाएगी, क्योंकि वो एज अ एग्जाम्पल आ जाएगा कि मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था, किसी ने किया था, तो उसका आंसर यहाँ पे है। तो आपकी इच्छा है। बाकी राधे राधे, राधे राधे राधे।